Hello, Hello, guys. hello, 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 guys. hello. Welcome to Briefcase Headquarters. So, from today onwards, we are embarking on a new journey where we will be basically unveiling like what's in the briefcase. Bro, you're speaking like a chat GPT. Yeah, that's what I'm using. But yeah, so we will basically cover new topics every day. What is happening in the world? What is happening in technology? What is happening in geopolitics? What is happening in science? Politics. Yes, Yeah, bro. I'm we a are two politician. boomers. We are two boomers who are trying to cover what's happening in scientific and AI world. Yes. So let's We have begin with our we have introduction, I PhD, think. we have PhD in law, science, and medicine. Everything we have studied. Bro, you forgot yapology. Yes, bro. That's the Why are you specialization. yapping? Why are you yapping? Just tell about yourself and just move ahead with the video. Yes. So, first, can you just tell like what videos you are going to watch for every single day? Anything that we find interesting, exciting, we just watch it and like everybody forms opinion while watching these videos. So why not just vomit out these opinions on the internet and maybe gain some views? Why not? Okay. So I'll start with the first video now. Do you know what is it about? Uh, I mean, yeah, obviously because I sent it to you. So this is the first video. Trump has gone crazy. Okay. So should I play it out or no? Yeah, yeah, plate. नमस्कार वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही कंपनी एप्पल के पीछे पड़ गए। इन्होंने एप्पल को धमकी दी है कि अगर आईफोन भारत या किसी और देश में बनाए, मतलब कि यूएसए के बाहर किए अगर आईफोन मैन्युफैक्चर और यूएसए में बेचने की कोशिश करी, तो तुम पर मैं लगा दूंगा 25% टैरिफ। नाउ ये जो 25% टैरिफ है, ये उस कंट्री पर ही लगेंगे। ये बेसिकली कह रही हैं कि जहां आईफोन मैन्युफैक्चर करेगा आउटसाइड द यूएस, वहां पर ये 25% टैरिफ लगा दिए जाएंगे। बेसिकली यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही कंपनी एप्पल को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से एप्पल के आप शेयर देखोगे, जो एक बहुत ज्यादा प्रीमियम कंपनी के शेयर माने जाते हैं, पिछले कुछ ही दिनों में 6% से ज्यादा गिर चुके हैं। Bro, what do you think about this? Like, for every single commodity, Trump is going mad. He's imposing tariffs on every single country. He's having this big, large list of countries with the tariff. What do you think about all this? I cannot talk about Trump because maybe I'm his next target. He will put sanctions on me as a On person. speaking on this podcast. Yeah, maybe. Yeah. I don't think so. Like, I am nobody to comment on his economics or his knowledge about all this geopolitics stuff. I cannot comment on that, but I think it's stupid. I mean, it doesn't make any sense because, I mean, imagine Modi, PM Modi threatening Ambani regarding the uh, oil. What is that? Basically his refineries, that I'll Hmm. put sanctions if you purchase oil from China and everything. No, he can't because obviously he's too big to fall. Yeah. PM Modi can't do it. I mean, But Trump can do it. yes, because he's Trump. He's a narcissistic person. I think. Yeah, honestly, like Apple has already established its manufacturing units in China, Vietnam, and Hmm. they are doing it in India, and he's trying to stop it. I mean, not only India, but his we don't know his interior motives. His interior motive is obviously to see India, like not see India grow, because he doesn't want India to grow, obviously, because we are in a position like we have this much population, and we have like the military strength. The strength of India is growing day by day. So I think
he sees India like a problem. That is, we are emerging as a problem to him. So he just wants to like try uh, try to stop us basically. Yeah, we are the new superpowers, bro. But not right now. We are Not just yet, uh, but we are we are emerging. just an emerging superpower. We can say that. Yeah. है Obviously, और there are माना जा रहा challenges. है I'm not saying. Hmm. Hmm. So कि let's मंडे watch. को हो सकता है Continue. कि ये और ज्यादा गिर जाए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प ट्वीट कर रहे हैं स्पेसिफिकली टिम कुक के बारे में मेंशन करके, और एप्पल के जो फ्यूचर के शॉर्ट करना है प्लान्स हैं शेयर। भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैलाने के, ये क्या सब देखकर एप्पल का एप्पल के शेयर शॉर्ट इन्वेस्टर करते हैं। शॉर्ट करते हैं भाई सच में, बट सही आई है डोंट थिंक इतना गिरेगा. रिकवरी तो इट्स गोइंग टू रिकवर वेरी सून. पर नॉट वेरी सून बिकॉज ये ड्रामा चलेगा और लंबा। उन लोग का भी कुछ ना कुछ होगा, मीटिंग करेंगे टिम कुक और ये बैठ के कि कुछ करते हैं, सॉर्ट करते हैं, मांडवली करते हैं बेसिकली। तो कुछ तो निकलेगा इवन दो, बट बोल तो रहे हैं कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आईफोन्स वर्ल्ड में जो सेल होते हैं उसका शायद 14 से 15% इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। और इंडिया भाई चीप लेबर है, मतलब लिटरली हमको भी कोई खरीद ले तो हम भी चले जाए लेबर का काम हाँ. करने। तो आई मीन और इंडिया में मेन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो ग्रोइंग लाइक फॉर लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास बाहर इफ इंडिया इवन में इफ तू होने के। देखेगा तो एप्पल का रेवेन्यू डे बाय डे ग्रो हो रहा है, बिकॉज सब लोगों को रील बनाना है आईफोन के साथ, देखता है ना तू. नहीं बट इंडिया में वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट होगा ना। इंडिया में तो ऑब्वियसली लोग तो खरीदेंगे आईफोन, कितना भी महंगा मिले, 2-2.5 लाख का 3 लाख का मिलेगा तो भी खरीदेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आईफोन है अच्छा, मैं नहीं बोलता हूँ बुरा हाँ. है, बट अगर अभी यूएस से अगर मैन्युफैक्चर होके आएगा तो आईफोन पड़ेगा 3 लाख का। तो ऑब्वियसली सेल्स तो अफेक्ट होंगी होंगी, क्योंकि आई मीन 1 लाख का लोन तो ले लेते हैं लोग, बट 3 लाख का लोन तो बहुत बड़ा ब्रो, है। एक किडनी के बदला 2 किडनी लगेंगे ना. अरे फिर वही किडनी जो भाई तू वीडियो अरे चला दे छोड़ इसको। काफी चिंतित है। इधर आप देख पाओगे, पहले तो ट्रंप ने करी ये ट्वीट में लिखा, मैंने लंबे समय पहले टिम कुक को कह दिया था मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है आईफोन की जो यूएसए में बिकेंगे तो वो यूएसए में ही बनने चाहिए। और आगे उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो टैरिफ इसका पे करना होगा बाय एप्पल टू द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। अपनी ही कंपनी, वो भी दिग्गज कंपनी एप्पल के पीछे इस तरीके से लग जाना, क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉन क्रेजी। नाउ अमेरिकन इस सब के बारे में क्या कह रहे हैं, क्रेजी। क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद की ही कंपनी को इस तरीके से टारगेट करने की बात कर रहे हैं। मैंने अब तक जो भी अमेरिकन न्यूज आउटलेट्स का रिएक्शन देखा है इसको लेकर, जो भी अमेरिकन एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स का, सब लोग एक सुर में एक ही बात दोहरा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल विद 25% आईफोन टैरिफ थ्रेट। देखिए, आपको समझना होगा ट्रंप की जो जिद है कि आईफोन बनाओ आप यूएसए में, ये प्रैक्टिकल नहीं है। यूएसए में अगर आईफोन बन गया तो उसकी इसके क्वालिटी तो खुद अलावा बेचनी एप्पल के होगी। अलावा कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करता है यूएस में? कोई क्या नहीं करता है ना. यूएस में फोन्स. मैन्युफैक्चरिंग फोन तो नहीं होता है, क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाँ. मार्केट इन मैन्युफैक्चरिंग फोन्स इज चाइना, एंड आफ्टर चाइना इट इज आई थिंक ताइवान, एंड थर्ड इज इंडिया। तो यूएस उस लिस्ट में ऑब्वियसली टॉप 3 में अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैटर नहीं करता, क्योंकि यूएस जितना अगर बड़ा कंट्री कुछ मैन्युफैक्चरिंग एट दिस पॉइंट नहीं कर रहा है, फोन्स में बोल रहा हूँ ऑब्वियसली, फोन सेगमेंट में अगर अभी ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में अगर वो टॉप 3 में आता नहीं है तो अब उसको नीचे से ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब लिटरली ये तो बात ये हो गई कि सैमसंग को भी बोलेगा, हुआवे और ये सब सबको बोलना पड़ेगा कि आओ यूएस में आके मैन्युफैक्चरिंग करो तब बेचने दूंगा, और ये तब जाके फिर यूएस इम्पॉसिबल चीज है लिस्ट में एकदम. आएगा। नहीं आई मीन आईफोन के अलावा कोई और क्यों ही आएगी, अब वो साउथ कोरिया में ऑलरेडी उनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है सैमसंग की, या फिर हुआवे की चाइना में चल रही है। हुआवे तो वैसे बैन है चाइना हाँ. और इंडिया में, बट स्टिल कोई क्यों ही आएगा अभी महंगे जगह पे, कौन क्यों ही आएगा अभी यूएस का उसका लेबर, लेबर इतना महंगा है, प्लस वहां पे शायद लॉजिस्टिक्स सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी. उतना हो भी ना, हाँ. क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्री अपना लॉजिस्टिक्स अच्छा करती है ना, जैसे चाइना है। अभी मैं तो नहीं बोल रहा हूँ डेवलपिंग है, बट जब वो थी तब उनका हाँ. लॉजिस्टिक्स इतना बढ़िया था कि लिटरली आईफोन यहाँ बना के कहीं और लेके जाना है जल्दी लेके जा सकते हैं, शिप करना है बाहर, एक्सपोर्ट करना है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बना होता है कि हमें बाहर से कंपनीज आएंगी,
वो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगी और वो एक्सपोर्ट करेंगी। तो वो लॉजिक से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, बट यूएस का है ही नहीं वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर। आई डोंट थिंक सो है। कुछ भी नहीं है। हाँ आप कह सकते हैं अभी भी लाखों का ही बिकता है, 1.5 लाख रुपए के आसपास का आईफोन पहुंच जाता है अगर आप उसका बिल्कुल प्रीमियम वर्जन परचेज करो। मगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इवन 4-5 लाख रुपए का एक आईफोन पड़ेगा अगर उसको यूएसए में बनाया जाएगा। यूएसए बाहर मैन्युफैक्चरिंग इसलिए ही करता है ताकि बाहर सस्ते दामों पर ये आईफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स ये मैन्युफैक्चर हो पाए और इनको यूएसए में बेचा जा पाए, जिससे यूएसए की जनता एक अफोर्डेबल रेट पर ये सब परचेज कर पाए। ये यहाँ पे मैं आपको एक अमेरिकन एनालिस्ट का एस्टिमेट बता रहा हूँ। हम यहाँ पे एक आईफोन प्रो की बात कर रहे हैं, आईफोन प्रो मैक्स जो इनका सबसे एक्सपेंसिव वेरिएंट होता है उसकी बात नहीं कर रहे। अगर हम एक आईफोन प्रो भी यूएसए में मैन्युफैक्चर और अभी तो एक और चीज ये हो गई है कि बहुत लोग iOS से सच में तंग हो चुके हैं। तूने देखा है आजकल आई हिंदी मीन मैंने अभी ट्राई किया है iOS तो हाँ, आई डोंट नो, मुझे तो ठीक लग रहा है, इतना बुरा नहीं है क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरे लिए आईपैड तो अच्छा है। आई मीन फास्ट है, बाकी एंड्रॉइड टैबलेट से काफी फास्ट है। आई मीन हाँ ऑब्वियसली टैबलेट कॉस्टली वाइज है। आईपैड सबसे बेस्ट है, लेकिन फोन्स में देखिए आप तो होता क्या है, जनरली इनोवेशन जो होता है वो दूसरे फोन्स एंड्रॉइड में होता है या हाँ ज्यादा पहले आता है, फिर एप्पल जनरली उसको कॉपी करके अच्छा बनाता है फोन। आई मीन वो फिर अब सब्जेक्टिव चीज है ना, अभी किसको बुरा लगेगा वो चीज, किसको अच्छा लगेगा। कुछ लोग हैं जो एकदम टेक सेवी है, मेरे दोस्त है काफी, वो उन लोगों का लॉजिक ये होता है कि ऑब्वियसली आईफोन में उतना तुमको पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है नहीं है। एंड्रॉइड में जितना है, और उनको ऑब्वियसली पसंद है पर्सनलाइजेशन की हम कर सके, चेंजेस कर सके, कुछ भी कर सके। तो वो नहीं कर पाता है तो फिर उनके लिए वो अच्छा नहीं है। बट मेरे को तो चल जाएगा, आई डोंट माइंड। बूमर हूं मैं। करते हैं तो उसकी कॉस्ट आराम से $3,500 की पड़ेगी, जो अभी के लिए यूएसए में बिक रहा है $1,000 का। $1,000 की चीज $3,500 की, और आप समझ लीजिए जो हाँ $2,000 की चीज होगी तो वो आराम से $7,000 की पड़ेगी अमेरिकन कंज्यूमर को। इससे सिंपली डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक दिग्गज कंपनी एप्पल को मैसेकर कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि सैमसंग के लिए, इवन चाइनीज कंपनीज के लिए एक खुला मैदान तैयार हो जाएगा कि जाओ जाके अपने आईफोन्स आप जितने मर्जी के बेच सकते हैं, प्रॉफिट भी होगा, सब कुछ होगा। सो अगेन इसलिए कहा जा रहा है यूएसए में ट्रंप इज आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल। मगर जिस तरीके से ट्रंप बात कर रहे हैं, जो इनकी वीडियो सामने आ रही है, जो इन्होंने प्लान्स बना लिए हैं, ये कह रहे हैं कि जून से हम इसको लागू कर देंगे, लगता नहीं है ये पीछे हटने वाले हैं। So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, at the end of June, it'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product, now again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with Tim that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. And बेसिकली बोल रहा है बिंदास कमा के आओ उधर से, लेकिन हाँ हमारा business मत खराब करो। नहीं नहीं, कमा के आओ इन द सेंस कि वहां जाओ, तुम मैन्युफैक्चरिंग करो, कुछ भी करो, पैसे वहां पे बचाओ, तुम सेव करो। बट यहाँ पे मेरे यूएसए में बेचने नहीं दूंगा भाई। इसका नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड है ना कि इंडिया में मतलब यूएस को मैं मार्केट को मैं डोमिनेट करता हूँ, मेरी मर्जी चलेगी, करने नहीं दूंगा, सेल नहीं करने दूंगा, जो करना है कर ले। ब्रो अमेरिका को ग्रेट बनाना है ना अभी। यस मागा। that's the way it is. Yeah. What makes confidence, sir, that Apple can build in the United States at a price that American consumers? Oh, they can. No, they can. And a lot of it's so computerized now. These plants are amazing if you look at them, but they can do that. And actually, as you know, Apple's coming in with $500 billion. So are the chip companies. We have all of the chip companies coming in. The biggest, 500 billion, 200 billion, 250 billion dollars they're spending. वेगली कुछ भी यहाँ बोल पर देता ट्रंप से जब पूछा गया कि आपको नहीं एक्चुअली एनवीडिया को भी इसने फोर्स करके बोला है कि चिप्स वगैरह जो एआई चिप्स हैं वो बेच नहीं सकते हैं चाइना को, बिकॉज अगर उनको वो टेक्नोलॉजी अगर पहले दे दिया तो वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। तो इसने क्या किया है, एनवीडिया ने भी अपना बिजनेस बचाने के लिए क्या किया है कि एक लोअर वेरिएंट चिप बना के वही चिप बेचते हैं चाइना को अभी। बट उसमें भी बहुत कुछ ड्रामा ये जो चल रहा है वो कोई लेगा ही नहीं ना होती रहा है। फिर। नहीं अभी लेगा। चाइनीज भी तो मतलब गधे थोड़ी ना है कि हमको लोअर लेवल बेचोगे तो हम खरीदेंगे नहीं।
और चाइना तो कॉपी करने में अच्छा ही है, तो ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं से तो वो चिप ऑब्वियसली उनके पास आ जाएगी, आउटसोर्स करवा के कैसे भी वो स्मगल करके लेके उसको पूरा वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, उसको पूरा खोल खाल के देख लेंगे कि कैसे बना है, और फिर खुद बना के फिर बेच देंगे वो लोग। चाइना तो कॉपी करने में आगे ही है, मतलब अगर कुछ बन रहा है कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कुछ बन रहा है, तो वो चाइना के पास अगर पहुंच गया तो उसका डुप्लीकेट 6 महीने में रेप्लिका बना बन देंगे, ही कोई दिक्कत जाएगा। नहीं। हाँ। हाँ। लगता है कि यूएसए में आईफोन बनाना सस्ता पड़ेगा, तो इनका जवाब था कि हाँ, हमारे यहाँ बहुत एडवांस्ड एआई वाली फैक्ट्रीज है, हम सब कर लेंगे। सो क्लियरली सेंटर डिल्यूजनल। ऑफ इनको ग्रेविटी, एक प्रॉपर आइडिया है नहीं कि ये रियलिटी क्या वैसे है ही और सेंटर क्या ऑफ ये ग्रेविटी। अकॉम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रो इज जस्ट यूएसए में डिल्यूजनल आईफोन लाइक मी। मैन्युफैक्चरिंग करने की फैसिलिटी सेटअप करने में ही बहुत टाइम लगेगा। और मुझे पता है यहाँ पे एज इंडियंस आप लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि लाइफ कितनी अनफेयर है। व्हेन चाइना स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग जर्नी 1990s या फिर इवन अर्ली 80s के आसपास आप अगर कहो, तो यूएस बिल्कुल चिल था, यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चाइना ने खूब मैन्युफैक्चरिंग करी, बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। बट जब बारी इंडिया की आ रही है, इंडिया धीरे धीरे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बनने वाला है। जी हाँ, अभी के लिए जो लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, नंबर 1 पे चाइना अभी भी है, नंबर 2 पे है वियतनाम, नंबर 3 पे भारत है। लग रहा है कि कुछ ही सालों में हम वियतनाम को सरपास कर लेंगे और चाइना को सरपास करने में कुछ और साल लग सकते हैं। तो जब भारत का राइज हो रहा है, तभी अचानक से ये टैरिफ और ये सब कर देंगे, ये सब ये क्यों हो रहा है? देखो, यहाँ पे भारत को एक प्राइस पे करना पड़ेगा फॉर मिसिंग द बस। हम लेट हो गए हैं। और यूएसए जो आज के समय 2025 में है, ये वो यूएस नहीं है जो 1990 में हुआ करता था। 1990 का यूएसए एक, लिटरली मैं कहूंगा, सोल तभी सुपर मिस्टर पावर थी इन द डोनाल्ड वर्ल्ड। ट्रम्प नहीं होता था ना। रिसेंटली जेडी वैंस एक अलग से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यूएस की मेंटालिटी क्या है। रिसेंटली जेडी वैंस की एक वीडियो सामने आई है जहां पे वो खुद एडमिट करते हैं कि दुनिया बदल चुकी है। अब वो दिन गए जब यूएसए की बस अकेले चला करेगी दुनिया में और यूएसए सब कुछ डोमिनेट कर देगा। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट और इसलिए यूएसए को भी अपनी नीतियां बदलनी होगी। But the era of uncontested U.S. dominance is over. Today we face serious threats. And China, Russia, and other nations determined to beat us in every single domain. तो जैसे आपने यहाँ पे सुना, जेडी वैंस यूएस वाइस प्रेसिडेंट खुद ही ये बात एडमिट कर रहे हैं और ये बात मैं अमेरिकन की अप्रिशिएट करता हूँ। रियलिस्टिक लोग हैं, जो बात दुनिया बोल रही होती है उससे भागते नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी के हिसाब से अपने एक्शन लेने स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज वाई दे हैव डोमिनेटेड फॉर सो लॉन्ग। और प्रॉब्लम जेडी सॉल्विंग वैंस ने एटीट्यूड खुलकर तो यहाँ पे है बोला। ये लोगों का, नहीं? प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है, बट फिर वही है ना, इंडिया में फिर वही चीज वो खलती है ना कि इंडिया में लोग हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है। ना एजुकेशन सिस्टम सिखाता है, ना घर वाले सिखाएंगे, ना तुम्हें सोसाइटी सिखाएगी, कुछ नहीं। चुपचाप पढ़ो बैठ के, वो सब करो तो हम लोग वही वही चीज फिर से रिपीट करने में होशियार है। न्यू चीज इनोवेशन वाइज ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। नहीं, इनोवेशन कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, लेकिन मेन जो रिसर्च का क्वेश्चन होता है वो नहीं आता है। ये मेरे को याद आया, किसी ने बोला था मुझे कि ये इंडियंस रिसर्च कर लेंगे, और क्योंकि बाहर देखोगे तो बाहर भी ऑलमोस्ट एशियंस ही कर रहे हैं, ठीक है, इंडियंस नहीं, एशियंस ही कर रहे हैं। ये पीछे आवाज आ रहा है। रुक जाओ, बोल तो क्या बोला? तो ज्यादातर इंडियंस ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं रिसर्च वगैरह में इंडियंस आगे हैं, बट जो रिसर्च का क्वेश्चन फॉर्म करना होता है उसमें नहीं है वो लोग आगे। और अगर प्रॉब्लम देखते भी है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ लिटरली अगर आंखों के सामने कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च करना चाहिए, तो उनके दिमाग में वो नहीं आता है। बट हाँ। अगर कोई बाहर वाला बोल दे या फिर कोई उनका प्रोफेसर बोल दे कि अरे यार ये प्रॉब्लम है, ये जगह तुम्हें देखना चाहिए कि यहाँ पे जाके तुम सॉल्व करो, तो जाके वो लोग सॉल्व करते हैं। तो वहां पे ही तो पीछे हो रहा है ना। अब जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च की पेपर प्रॉब्लम भी है। देख, तू जैसे बोल रहा है कि रिसर्च करते हैं हम लोग, हम्म। तो जो रिसर्च के जो आउटपुट निकल रहे हैं वो इंडिया के इकोसिस्टम में थोड़ी निकल रहे हैं। यूएस और यूके और ये सब वो कंट्रीज तो में ही निकलना सब रिसर्च कुछ। इंफ्रा तो नहीं है ना, ऑब्वियसली नहीं हाँ है, तो इधर मैं कल्चर है ही नहीं ना। वही बोल रहा हूँ ना कि इकोसिस्टम वैसा यहाँ पे है ही नहीं। बट टैलेंट तो है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, लोगों में तो टैलेंट है बट पर कल्टीवेट करने नहीं आ रहा है, अभी उग रहा फायदा है। फायदा हाँ, उनको ही होगा ना। फायदा तो उन्हीं को हो रहा है ना। तो वही दिक्कत है ना, तभी तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना। हाँ। और एक और चीज भी है, मतलब रिसर्च पेपर वाइज नंबर्स भी देखेगा ना, हम्म। तो
यूएस और यूके की ऑब्वियसली ज्यादा है, इंडिया वाइज बहुत 2 और 3% पेपर्स है हमारे बस। और इंडिया में अगर होते भी हैं तो फिर यार आधे से ज्यादा तो बस वो कॉलेज में से डिग्री लेने के लिए करते हैं, डिसर्टेशन करना कि बस डिग्री मिल जाए, बट समझते नहीं है ना कि ऑब्वियसली रिसर्च का कुछ काम आना चाहिए। अब जैसे मैं तो बोलता हूँ कि ठीक है मेरे लॉ में उतना नहीं काम आएगा, क्योंकि उसमें रिसर्च जो है वो ज्यादा थियोरेटिकल है, तो थियोरेटिकल चेंजेस तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट ही करेगी। अगर लॉ में कुछ चेंज करवाना है तो या तो पार्लियामेंट करेगी या तो फिर पब्लिक चेंज लेकर आएगी, बट पब्लिक इतनी वो है कि मैं क्यों रिसर्च पेपर पढूं। अभी नॉर्मल लोगों पे, रैंडम लोगों को देख लो कि भाई उनके पास मतलब बेसिक नॉलेज नहीं है, तो वो लोग को रिसर्च पेपर कौन पढ़ाए, फिर उनको उनके बारे में बोले कि देखो यहाँ पे इश्यूज हैं ये फलाने लॉ में, तो फिर वो लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। लॉ में तो काफी कम है, बट अगर इसमें देखा जाए थियोरेटिकल वाले मतलब साइंसेज में, बेसिकली जो साइंसेज हैं, ऑर्गेनिक साइंसेज है, उसमें तो आई मीन इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। और अभी देख साइंस या आईटी है या फिर बेसिकली आईटी ज्यादा बोलूंगा, इंजीनियरिंग और आईटी, उसमें भी मोस्टली ड्रीम तो यही रहता है ना कि कोई बड़ी आईटी कंपनी में जॉब लगाना है अपना, वैसे ही वो सपना रहता है ना, तो रिसर्च की तो दूर की बात हो गई। हाँ आई मीन बट वो ड्रीम जो है काफी मतलब इनकम्प्लीट है आई थिंक, क्योंकि अब उससे तुम पैसा तो कमा लोगे, बट इंडिया मतलब इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन ऑल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में तो तुम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो ना। अब जैसे बट मैं लॉ कर रहा हूँ, यही, मैं अपना बार बार एग्जांपल दूंगा ऑब्वियसली लॉ का ही, कि हाँ अब मेरा ड्रीम ये होना चाहिए ना कि अगर देखा जाए तो कि इंडिया के लिए अगर कुछ करना है, या फिर लॉ एज इन जनरल लॉ मतलब जो है उसके लिए अगर कुछ करना है लॉज के लिए, तो मेरा ड्रीम या तो ये होना चाहिए कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में काम करूँ या फिर लॉ मिनिस्टर ही बन जाऊँ। वो तो काफी बड़ा सपना है ऑब्वियसली, नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स और पैसा, बट लिटरली कुछ ऐसा चेंज लाने के लिए कि ऑब्वियसली लॉज में भी चेंज लाओ। तो गोल अगर वो होगा तो वो ज्यादा बेटर होगा, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिकल गोल देखा जाए तो सबका यही होता है कि बड़े फर्म में लग जाए या फिर बड़े आईटी कंपनी में लग जाए, पैसा कमाने, चिल लाइफ जी लें काम करने के बाद, वो होता है। हाँ सर्वाइवल पे ज्यादा ध्यान है। ऑब्वियसली पहले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही जगता है ना कि पहले खाने को, पेट में रोटी है, उसके बाद देखेंगे देश का क्या होगा। और बट आई थिंक वो चेंज नियति हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा, और मतलब जिस उससे ग्रो हो रहा है, क्या बोलते हैं, जिस इंटेंसिटी से, तो और इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए आई थिंक। हाँ आई थिंक फ्यूल, मतलब कोई फ्यूल करने वाला चाहिए इंडिया में, स्पेशली वो कोई है कोई नहीं विजुअल ऐसे विजुअल यंग यंग लीडर्स नहीं है ना यहाँ पे। हम जैसे। अब नहीं यार हम कहाँ के लीडर, बट मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे यूएस में कैसे अगर तू उसको देखेगा अपना आईटी वाला जो सेक्टर है पूरा, अब उसमें जितने हाँ भी सीईओज हैं वो यंग है काफी। इलॉन मस्क को भी यंग, हम उसको भी हम यंग में गिनेंगे, ऑब्वियसली है बुढ़ा 40+ है आई गेस, अब वो भी बट 2000 से ही पॉपुलर स्टिल, है काफी। बट थिंकिंग अगर यंग है उसकी, तो फिर उस हिसाब से जो फ्यूचर की तरफ लोग दौड़ेंगे तो उन लोग का जो डायरेक्शन है वो उन्हीं के साइड जाएगा ना ज्यादा। अब इंडिया में एवरेज पॉलिटिशियन का एज है मतलब 55 कुछ है शायद एवरेज पॉलिटिशियन का एज, अगर सबका हम्म निकाला जाए तो यार वो तो काफी लेट हो गया। मतलब वो तो उस टाइम पे वो लोग बिजनेस कर लिए, उन लोग ने जॉब वगैरह कर ली, पैसे कमा लिए, अब वो पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं। बट अगर पॉलिटिकल जो है वो कंटिन्यूअस अगर होए, उनका भी, उनकी जर्नी भी कंटिन्यूअस हो कि भाई 22-21 में डिग्री कर ली, उसके बाद उन्होंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू की, उसके बाद उन्होंने कुछ लिटरली अचीव किया, और 26-27 के आसपास वो लोग पॉलिटिक्स में घुस गए, तो उनके जो आइडियाज भी होंगे वो फ्रेश होंगे, यंग होंगे। अभी ऑब्वियसली बैकएंड में तो चल ही रहा होगा, अभी बैकएंड में तो जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं वो तो ऑब्वियसली यंग यंग वाले भी हैं, 23-24 के आईएएस ऑफिसर्स जो हैं बट 23 एज देख जो अभी तू वो बोल रहा है ना जैसे कि भले बैकएंड में है लेकिन उतना रिस्पेक्ट या उतना सीरियसली फेस लेते में नहीं नहीं है है ना, कोई। हाँ क्योंकि लोगों को तो चाहिए ना किसी को एडमायर कर सके। अभी आईएएस वगैरह तो ठीक है, बट और भी तो होंगे ना ब्यूरोक्रेट काम करते हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं। अभी एआई की पॉलिसी अगर होगी तो ऑब्वियसली उसमें यंग लोग ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, कि उन्हीं को तो पता है एआई है क्या। हाँ आई मीन बायस्ड इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल मेरे को तो लगता है ना कि ऑब्वियसली यंग लोगों को ही ज्यादा पता है कि एआई क्या है। अब मेरे पापा के एज वालों को तो नहीं पता होगा ना एआई क्या है,
तो उनको मेरे को भी बताना पड़ेगा। हम्म तो वो लोग अगर सामने आ जाएंगे, लोगों के सामने आएंगे, तो फिर लोगों का थिंकिंग बदलेगा कि अच्छा हाँ बोल रहा है, अगर ये आदमी बोल रहा है तो ऑब्वियसली रिसर्च में होगा कुछ, तो इसलिए वो फिर रिसर्च में हाँ जाएंगे और लिटरली चाहेंगे कि हम्म कुछ करें इंडिया के लिए। यूएस वैसा होना अफोर्ड कर नहीं सकता। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भारत और यूएस जो अभी भी एक ट्रेड डील के बारे में नेगोशिएट कर रहे हैं, और आई एम श्योर एक अच्छी न्यूज सामने आएगी बहुत ही जल्द रिगार्डिंग ए ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस, क्योंकि वो ट्रेड डील ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शंस पर बेस्ड नहीं है। आई मीन हो सकता है कि अगर देखो अभी यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को जीत चाहिए, क्योंकि अगर ट्रंप वहां पे हार जाते हैं तो इनको हैवी पॉलिटिकल लॉस होगा, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम हो जाएगी। रिपब्लिकन अभी के लिए दोनों जो के लिए हाउसेज हैं यूएसए में, पावर के लोअर हाउस अपर हाउस दोनों को कंट्रोल करते हैं। अगर ट्रंप उनमें से एक हार जाते हैं तो सडनली ही विल बिकम अ वीकर प्रेसिडेंट। चांसेस ये भी है कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील मिड टर्म इलेक्शंस के बाद हो, और उस ट्रेड डील में ये भी बात मेंशन की जाए कि इंडिया में अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है तो उस पर यूएस टैरिफ नहीं लगाएगा। बाकी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो बात यूएस अभी प्रपोज कर रहा है ना, जो ट्रंप की अभी धमकी है, भारत ऑलरेडी करके बैठा है। अगर कोई आईफोन यूएसए मैन्युफैक्चर करता है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है टू इंडिया, हम लोग उस पर कस्टम ड्यूटी लगाते हैं अराउंड 16%। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज रिजॉल्व नहीं हो सकती। आई एम श्योर एक ट्रेड डील के अंडर भारत अपने जो ये टैरिफ है ये भी गायब कर सकता है, यूएस भी अपने जो ये टैरिफ है ये भी गायब कर सकता है, और उस केस में इंडिया को काफी एक एडवांटेज होगा, क्योंकि वियतनाम और चाइना उनको ऐसी ट्रेड डील लगता नहीं है कि मिलने वाली है, क्योंकि वियतनाम के पास कुछ खास ऑफर करने को है नहीं। सो अभी के लिए मैं कहूंगा कि बिल्कुल देखो जो ट्रंप के मिडिल पाथ प्लान्स क्या हैं ये सब लगता है, देखकर काफी चिंता हो रही है कि इंडिया में मिडिल पाथ क्या लगता है, इसका क्या निकलेगा, प्रिडिक्ट। आई थिंक ट्रम्प का जो जनरल पास्ट रिकॉर्ड है वो तो सेटल कुछ ना कुछ डील निकल ही जाता है, बोलता तो कुछ अरे भी है वो। मेरे को लगता है वो डील के लिए ही इतना वो बतंगड़ बनाता है कि 25% लगा दूंगा, 30% लगा दूंगा, 1000% लगा दूंगा, फिर इवेंचुअली वो 128% ब्रो, तो वो 128%। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आर्म पहले से ही ले लेता है। बट अभी उसको ये हाँ नहीं पता है कि इस चीज में स्ट्रॉन्ग आर्म नहीं लिया है, उल्टा इस चीज में वीकर साइड पे वही है, क्योंकि अगर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई तो ना एक्सपोर्ट से पैसा कमाएगा एप्पल, ना इंपोर्ट से पैसा कमाएगा, मतलब इंपोर्ट इन द सेंस मतलब जो डोमेस्टिक ट्रेड करेगा, जो डोमेस्टिक में आईफोन्स बेचेगा, वो उसी में से ही नहीं कमा पाएगा, तो उसको टैक्स कैसे मिलेगा, जो इतना सारा खुद ही बोल रहा था कि $500 बिलियन का रेवेन्यू लाता है एप्पल, तो कहाँ से लाएगा। अभी एक्सपोर्ट में तो हम ऑलरेडी 16% लगाते ही हैं ड्यूटी, अब वो मेरे को लगता है और 25% हो ही जाएगा, हाँ क्योंकि मैच करेगा इंडिया। इंडिया फॉरेन पॉलिसी में ऐसा ही है कि तुम अगर लगाओगे तो हम भी रेसिप्रोकल लगाएंगे। है। हाँ हाँ रेसिप्रोकल टाइप हो जाएगा, तो फिर ना इंडिया में कोई खरीदेगा, क्योंकि इंडिया जितना बड़ा मार्केट है अभी कितने हैं, 150 करोड़ लोग हैं। अब 150 करोड़ लोग में से अगर 1 या 2 करोड़ आईफोन भी बिक रहा है तो बहुत बड़ी चीज है उनके बहुत लिए। सेल्स है उनके लिए तो, स्पेशली बहुत सेल्स है। हाँ लिटरली एक आईफोन अगर 1.5 लाख का बिक रहा है तो मतलब मैं तो कर भी नहीं सकता हूँ कि कितना आएगा रेवेन्यू, हम्म प्लस कितना टैक्स आएगा उसके ऊपर, तो वो भी मतलब सोचना और चाहिए ट्रम्प और को। समझ, उनका एप्पल का अलग भी तो इकोसिस्टम है कि एप्पल म्यूजिक है, फिर एयरपॉड्स हैं, हाँ तो उसमें कितना रेवेन्यू आता। अरे बहुत, वही तो $500 बिलियन सबका ही मिला के है, $500 बिलियन बहुत बड़ी चीज है, मतलब हम्म 500 यूनिकॉर्न्स हो गए, बहुत ज्यादा है। और 500 यूनिकॉर्न जितना वो रेवेन्यू एक साल में निकालता है, हम्म तो मतलब लिटरली बहुत बूस्ट है। अब जैसे उधर का समझ ले, नॉट रिलायंस बट वन ऑफ द रिलायंस टाइप है उधर के लिए, हम्म तो हाँ डील ही होगी आई थिंक, और कुछ नहीं होगा, डील ही होगी। ट्रम्प का वही है भाई कि दिखाओ करके कुछ ना कुछ, फिर बैक डाउन कर दो चीज को सेटलमेंट करके। आई थिंक करता उसलिए है, बट एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होता है ना। अब जब ये बोल रहा है कि उसको अगर लिमिट ये चीज पे करता कि सिर्फ बाहर एक्सपोर्ट, बाहर मतलब इंडिया में नहीं होना चाहिए या फिर चाइना में नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमारा चाइना से हम्म तंगी है, बट हम कोई थर्ड पार्टी या फिर थर्ड कुछ कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि तुम्हारे लिए भी फायदेमंद हो और हमारे लिए भी हो। बट उसने बोल दिया कि हम्म यूएस में आके मैन्युफैक्चरिंग करो, बट यार यूएस में तो पॉसिबल पॉसिबल ही है। नहीं है ना। अब या तो बोल हम्म दे कि चलो मेक्सिको में कर लो, तो इंपोर्ट कॉस्ट हमारे से पैसा बचेगा तुम्हारा, या फिर कुछ हम्म और निकाल ले कि जहाँ लेबर थोड़ा चीप हो, मतलब यूएस से ऑब्वियसली चीप हो लेबर, और वो बट थोड़ी उसको यूएस कुछ से, चाहिए ही नहीं ना, यूएस के अलावा और कोई कंट्री चाहिए ही बट नहीं। यार फिर वो पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर इतना महंगा अगर चीज बनेगी, कॉस्ट इतना महंगा होगा, तो उस पे कितना ही वो पैसा कमा लेगा। हम्म खुद की कंपनी का खुद ही वो कर रहा है, लॉस कर रहा। हाँ मैसेकर कर रहा है एज द ग्रेट प्रशांत प्रशांत। धवन जो है। ठीक है, तो यही इस वीडियो का कंक्लूड करते हैं हम लोग।
हाँ आई थिंक ट्रेड डील ही होगी और कुछ नहीं होगा. लेट्स जस्ट वेट फॉर अ डील टू हैपन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए और हम्म. चिल मारो क्योंकि इवेंचुअली हमारे पास ऑप्शन बहुत है. हम लिटरली एमआई रियलमी के फोन्स लेते हैं, सैमसंग का चलता है. क्या बहुत पता अच्छे फोन. कोई इंडियन कंपनी आ जाए. मे बी ये जो बीच का गैप बनेगा इतना बड़ा, आईफोन जो हटेगा यहाँ से, तो बीच का गैप हम्म. फिलअप करने कोई ना कोई तो आएगा. एंड आई थिंक कोई आए, आई होप कोई आए, अच्छे फोन बनाए, बढ़िया मैं तो चाहता सस्ते हूँ में कि दे दे. इंडियन कंपनी कोई आए, बट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहे. अब लावा और माइक्रोमैक्स तो मतलब काफी गए वक्त. पीछे हो गए हैं. तो स्टिल या फिर मे बी कोई जापानीज कंपनी आ सकती है बीच में, साउथ कोरियन कंपनी. हाँ, वो पॉसिबल है. बीच का वो जो गैप है कोई ना कोई तो फिल करेगा ही, एंड होगा, फिल तो होगा ही. यस. सो दैट कंक्लूड्स इट. हाँ ठीक है.